वालेकुम सलाम। माँ जी इधर ही रहती हैं आप? हाँ जी। घर बिल्कुल सामने है? हाँ जी। माँ जी की होया सी? बेटा ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ 2 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ मियाँ बीवी दोनों रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਵੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਗਿਰਾ ਹੈ। अच्छा। ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਟਾਫਟ ਗਏ ਨੇ। ਨੀਚੇ ਔਰਤ ਸੀ ਫੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਦਰ 'ਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ 'ਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜਨ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੀੜੀਆਂ 'ਮੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਮੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ? ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ਧੀਏ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਕਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ ਗੱਦੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਥੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਧੀਏ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਪੋਤ ਹੋ ਗਿਆ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੀਲੇ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਧੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਨੀ? ਸਨੀ ਉੱਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਦਾ ਕਿੰਝ ਦਾ ਹੈ? ਐਡੇ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੈਸੇ? ਧੀਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਇੰਜ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਨੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਗਿਰ ਗਏ हैं। ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। हाँ। ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੰਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਹੁ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। कुछ और अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। घर किधर है? ये सामने। बिल्कुल सामने। जी जी 4 कदम के फासले जी पर। जी। ठीक है। इनके कोई इख्तलाफात चल रहे थे आपस में? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कोई इनके आपस में कोई रंजिश या कोई ऐसी बात नहीं। हमारी घर वाली बात है क्योंकि आज़ाद भी हमारा बेटा बना हुआ था मेरा वो भी पकीज़ा भी बेटियों की तरह थी। बेटियों को समझाना बैठना हमारे पास है। घर वाली बात कोई मसला नहीं था इनका। मगर उस दिन ऐसा हुआ है कि सुबह मैं नमाज़ पढ़ के जब आया और रोज़ा रख के ना तो सो गए हम। बच्चे जाग रहे थे अभी सोने की तैयारी कर रहे थे। एक बच्ची वज़ू करने गई है और वो ना उल्टियाँ करने लग पड़ी है। वॉमिटिंग आई है उसे वो बाहर आई है भाग के। तो बच्चे ने कहा बेटे ने कि आपकी आंखों को क्या हुआ है बहना रेड हो रही हैं। वो कह रही पता नहीं सबको खांसी आनी शुरू हो गई है। वो फौरी ना ऊपर चले गए छत पे। केमिकल की वजह से? हाँ जी केमिकल की स्मेल की वजह से। तो वो ऊपर भाग गए उन्हें गाली निकाल बेटा मेरा निकाल रहा है कि क्या कर रहे हो सनी को उसके कारीगरों को कि ये क्या इधर कर रहे हो कि गले को पड़ रही है। हमारा नीचे पैरट था वो मर गया। वो उसकी वजह से हम मुझे भी मैं भी सो रहा था। केमिकल की वजह से मरा है? केमिकल की वजह से मरा है। इधर बिल्ली तड़प रही है
बहुत ज़्यादा तड़प रही है, उसके मुंह में पानी डाला है, उसे ऐसे किया है, वो तड़फी जा ऐसे ऐसे कर रही है, आखिरी सांसों पे थी। तो मैंने उसे बुलाया, खबीस आदमी नीचे आ। अभी उसने ये किसी को नहीं बताया गया, हमने उसे नीचे उतारा है। तो वो मैंने कहा क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, क्या हो गया क्या हो गया। मैं कहा ये देख जानवर भी मर रहे हैं, मेरा पैरट मर गया, बच्चों को उल्टियाँ आ रही हैं। सारे बच्चों को हमने निकाला, इतनी देर में ना खीज़र आ गया बच्चा। वो कह रहा है, मेरे ट्यूशन पढ़ता है बच्ची से, वो कहता है टीचर मेरी मम्मा ना वॉशरूम में गिरी हुई है। ये मेरे भाई बने हुए सब हम महल्लेदार इकट्ठे थे इधर ही। तो ये जाते हैं अंदर, मियाँ बीवी और 7 बच्चियाँ। इस तरह के हादसा पहले भी कभी नहीं पहले ना धुआं आता था, हम उसे 2-3 दफ़ा हमारा झगड़ा हुआ है, बोलना कि भी शराफत से जैसे शरीफ आदमी समझाता है, हमने तो वैसे क्या है कि भी ये बंद करो, उसने किया कर दिया है, नहीं किया उसका ईमान है। मगर फिर भी जब आती थी हम ये झगड़ते थे, हम भी कहते थे, माँ और ही कहते थे सब जैसे जैसे। मगर वो नहीं, ढीठ आदमी था, मगर उसके साथ ना हमारा कोई झगड़ा ना कोई अपनी फैमिली तो यहाँ पे नहीं रहती, वो अकेला ही रहता था। वो हम तो इनकी वजह से कि ये हमारे बच्चे हैं, इनकी वजह से कि अगर ये कंप्लेन करते तो हम सब कुछ कर सकते थे उनके साथ। तो हमें ये बात पता ही नहीं थी। तो फिर उस दिन खिज़र जब बाहर आया ना, उसने कहा मामा पापा गिरे हुए हैं, ये अंदर गए हैं। उधर बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ जी, बच्चा ना बेहोश पड़ा हुआ था इधर, उसको उठाया, हम बाहर ले गए हैं। उसके मुंह में पानी वगैरह जूस, उसकी बेहोश था, उसकी दंदल ऐसे ना मैंने दांत ऐसे किए, उसने ऐसे सांस ली है, उसके मुंह में जूस डाला थोड़ा, फिर उसके मुंह पे पानी मारा है, फिर उसने मुंह खोला, थोड़ी सांस ली है, फिर मैं उसे उठा के ओंडे पे डाल के मैं और मेरा बेटा बेहोश अस्पताल की तरफ जाने लगे। फिर हमने इस भाई को बुलाया, हाँ जी, अच्छा, कि मुझे किसी ये को साथ बताएं ले कि ये लेके केमिकल जो इस्तेमाल हो रहा है, ये सब लोगों के लिए जो है ये जानलेवा है, क्योंकि सबके बच्चे रहते हैं साथ साथ बिल्कुल घर है। आपने बताया कि पहले परिंदे जो हैं वो 2-3 परिंदे भी मरे हैं, एक बिल्ली, हाँ एक बिल्ली भी मरी है, आपने बताया उसी दिन। आप लोग अब क्या कहना चाहते हैं इनके साथ? इनका तो पूरा जो घर है, पूरा आशियाना ही जल गया है, 2 बच्चे यतीम हो गए हैं, ना सर पे माँ रही ना सर पे बाप रहा। उन बच्चों ने अभी दुनिया नहीं देखी, उनको अभी नहीं पता कि हमारे वालिदैन जो है वो जा चुके हैं और हमने कैसे पहाड़ जितनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारनी है, कैसे वो बच्चे जो हैं वो सरवाइव करेंगे, कौन उनको संभालेगा? आप लोगों के भी बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जल्द ये बंद होना चाहिए। जो भी ऊपर गंद वगैरह पड़ा हुआ है ये साफ़ होना चाहिए। अभी भी स्मेल आती है इधर, और काकरोच वगैरह मरते हैं, वो देखें पड़े हुए हैं, हम ये साफ़ करके फेंकते हैं। मगर इधर अभी तो मैंने मास्क उतारा है, मैं मुँह धो के आया हूँ, मास्क लगा के हम फिरते हैं इधर अभी भी। तो प्लीज़ ये ख़त्म कर दिया जाए। वालेकुम अस्सलाम। आप भी यहाँ पे रहते हैं? हाँ बेटा, ये मेरे साथ ही आ रहा है। ठीक है। ये पूरे मोहल्ले में ना खौफो हरास फैल गया, एक डर फैल गया है, ठीक है। अचानक से परिंदों का मरना, बिल्ली का मरना, 2 इंसानों की जाने जाना, सबसे कीमती जाने, सारी जानें कीमती हैं। कोई चरिंदा परिंदा कोई भी है, इंसान हो जानवर हो, सारी जानें ही कीमती होती हैं। 2 बच्चे यतीम हो गए हैं, न सर पे माँ रही न सर पे बाप रहा। कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, क्या करना है, अभी उनको पता ही नहीं है। आप लोग अब क्या कहना चाहेंगे? हम लोग सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि ये जो ऊपर पड़ा हुआ है ना, पुलिस अभी अपना लॉक कर गई इधर से। अभी ये ऊपर वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, ना उसके ऊपर ढक्कन है ना उसके ऊपर कुछ है, वो वैसे ही उड़ रहा है हवा में या स्मेल आ रही, अभी तक तो वैसे ही है। उसके अलावा ये दोनों हमारे बच्चों की तरह थे, ये हमारे हाथों में ही बच्चे ही छोटे छोटे। हमारे मोहल्ले में, पिछले मोहल्ले में जहाँ पे ये रहते थे ना, वो भी मेरा ही मोहल्ला है, मैं भी वहीं से आया हूँ। मुझे तकरीबन 12-14 साल हुए इधर घर बनाए हुए, और ये 2.5 से 3 साल हुए नहीं इधर आए। तो इसने जिसने काम शुरू किए, इसे 7-8 माह ही हुए काम शुरू किए। उससे पहले ये होता था यहाँ से ना धुआं निकलता था, और वो उन्होंने कहा नहीं हमने उनसे कंप्लेन करते रहे, साथ साथ हमारे झगड़े भी होते रहे। सब कहना कि भाई ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, गली में खेलते हैं बच्चे, इधर ही क्रिकेट खेलते हैं, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे 4-4, 5-5 साल के किधर जाएंगे? तो ये भी दोनों बच्चे हमारे घर आके बैठ जाना। और वो जो हमारी बहन चली गई है दुनिया से, वो भी मुझे अल्फाज उसके याद हैं, वो अक्सर आके ना मेरी बेगम के पास बैठ जाती थी, कि उन्हें पता था हमें एक ही हैं, तो वो आके मेरी बेगम के पास बैठ जाना।
किसी टाइम आज़ाद ने देर सवेर हो जानी, उसे रात को देर हो जानी तो उसने आगे बैठ जाना, तो अक्सर उसने बात करनी कि ये पता नहीं हमें मार के पैसे देगा या हमें पैसे नहीं दे रहा। वो इनका वो चल रहा था कोई इशू, पैसों का मामला, गिरोह लिया हुआ था ना, तो उनका ये इशू चल रहा था। तो वो अभी वो लफ्ज़ याद आते हैं उसके, तो वो बड़ा दुख होता है। जब हम पहले फर्स्ट टाइम मेरी बेगम अंदर गई है, सेकंड टाइम मैं अंदर गया हूँ, तो इनका अभी झगड़ा चल रहा था क्योंकि वो ऊपर से स्मेल गई इनके वहाँ पे, तो बच्ची अंदर वज़ू कर रही थी कि मुँह धो रही थी, तो उसकी ना तबीयत ख़राब हो गई है। तो वो बच्चे ये इलाके में जो है वो ये झगड़ा ये झगड़ा तब का है जब हमें पता नहीं था कि वो अंदर गिरे हुए हैं। अच्छा, उसे पता था वो गिरे हुए हैं, उसे पता था क्योंकि वो उसे कि वो कैसा इंसान है, उसमें दिल नहीं है। वो बच्चे ने हमें ये आगे कहा कि वो गिरा हुआ है, तो मैं ना अभी लेटा हुआ, तो मेरे जहन में ये कि जैसे नॉर्मली बंदा गिर जाता है इतना बड़ा, तो वो जहन में नहीं है बात कि इस तरह हो गया होगा। हमारे जहन में ये कि जैसे नॉर्मली बंदा गिर जाता है। मैंने उसे कहा अच्छा मैं उठता हूँ, मैंने अभी मुँह भी नहीं धोया हुआ था, मैंने कहा मैं उठता हूँ क्योंकि सुबह तकरीबन 6:30 से 6:45 का टाइम था। तो मैंने बेगम को पहले भेजा, मैंने कहा आप चेक करो क्योंकि औरत ज़ात है, वो मेरी बेटी है। तो मैंने कहा बच्चा रात को कैसे सोए होते कैसे नहीं, तो मैंने कहा आप जाओ। वो बेगम मेरी अंदर गई तो उसने मुझे कहा जी वो बाथरूम में गिरे हुए हैं, दोनों गिरे हुए हैं। फिर मैं इधर ही था अंदर ही, बेगम मेरी आगे गई हुई थी। फिर मैंने उसे कहा आप पीछे आओ, मैं आगे गया हूँ, कोई छोटी सी जगह, मैं आगे गया हूँ। तो जब मैंने देखा ना, तो मैंने उसको हाथ लगाया कमर में उसकी, तो उसके ना वो सांस नहीं चल रही थी, दिल की धड़कन नहीं चल रही थी। हाँ, वो मैं समझ गया मौत हो चुकी थी। अब हम यही चाहते हैं कि इस काम को पहले यहाँ से बंद किया जाए और वो जो ऊपर है उसको उठवाया जाए, क्योंकि सरकारी ताला लगा हुआ, उसमें ना ये कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। तो इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए और जो इसका कसूरवार है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे हैं ना, हम भी बड़ी छोटी उम्र में यतीम हो गए थे, हमें पता है यतीम कैसे पलते हैं, और उनके सर पे तो माँ भी नहीं रही, हमारे साथ तो चलो माँ थी, उसकी करती है। ये हम इस चीज़ को बाखूबी समझते हैं, क्योंकि मैं भी 6 साल का था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। हमें पता है हम कैसे सर्वाइव करके यहाँ पे हैं। और वो एक तो बच्चा 3.5 साल का, एक 5 साल का, उनको तो पता ही नहीं है। उनके ऊपर तो जैसे वो कहते हैं कि उनके लिए ना क़यामत आ गई हुई है। तो ये हमारी मरीम नवाज़ साहबा से अपील है, और उसके अलावा ये अपील है कि उन बच्चों की कोई हेल्प की जाए ताकि उनकी कोई ज़िंदगी को मुस्तकबिल, क्योंकि जो जुराइम पेशा लोग निकलते हैं वो हमसे ही निकलते हैं, वो भी हम जैसे इंसान होते हैं, वो दुनिया के सताए हुए लोग ही होते हैं। जब इनके सर पे कोई शफकत का हाथ नहीं रखेगा तो वो कल को पिस्तौल पकड़ के निकलेंगे, वो किसी की माँ को लूटेंगे, किसी की बहन को लूटेंगे, किसी को गोली मारेंगे, वो भी हम में से ही हैं। तो हमारी अपील है कि बच्चों पे कोई आगे बढ़ के शफकत का हाथ रखे। आज़ाद हुसैन और पाकीज़ा इस दुनिया से जा चुके हैं। उनके 2 छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं कि सर पे कोई शफकत का हाथ रखने वाला नहीं है। सारे लोग अपने अपने घरों में मसरूफ़ हो जाएंगे, लेकिन 2 बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे माँ बाप के बगैर, ये आप लोग समझ सकते हैं। अहले इलाका की बात करें तो अहले इलाका में खौफ व हरास फैला हुआ है। इनका कहना ये है कि ये जो यूनिट लगा है, ये यहाँ पे जो केमिकल तैयार होता है, ये बंद होना चाहिए। ये हादसा था, ये इसके पीछे क्या हक़ाइक़ थे, पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश कर रही है, और तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि क्या ये मुबैना तौर पर कत्ल था या इसके पीछे कोई और वजह थी।